हाँ भाई क्या हाल है भैया, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आज गंजीस्वैग एंड आई होप आप लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे। वर्ल्ड कप चल रहा है एज ऑफ नाउ व्हेन वी आर रिकॉर्डिंग दिस। इंग्लैंड वर्सेस इंडिया चल रहा है, इंग्लैंड बीइंग थ्रैश्ड। कितने भाई 8 आउट हो गए 100 पे। इंग्लैंड हैज प्रूवन टू बी द वर्स्ट डिफेंडिंग चैंपियंस एवर। इतना बुरा तो आई डोंट थिंक कोई रहा है क्रिकेट में। खैर बाकी पाकिस्तान इज ऑलरेडी आउट ऑफ द वर्ल्ड कप, नॉट सरप्राइज, वी आर ऑलरेडी अवेयर कि ये बात जाएगी यहाँ तक। और इंडिया इज़ सो फार प्लेइंग 6 आउट ऑफ 6 विक्ट्रीज, सो उनके काफ़ी सारे चांसेस हैं। बाकी ये कि सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। हमारे सब्सक्रिप्शंस जो हैं पिछले 3 महीनों से सिर्फ आई थिंक 2-3 हज़ार का जंप आया। हालांकि वेर एवर आई गो इन द वर्ल्ड मुझे इसी के लिसनर्स मिलते हैं आज गंजीस्वाग के। सो आई एम श्योर अ लॉट ऑफ दोज लिसनर्स आर लिसनर्स ऑन लेट्स से स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट या गूगल पॉडकास्ट। सो ज़ाहिर है उस पर सब्सक्रिप्शन का कोई ऑप्शन नहीं है या शायद वहाँ किया हो। सो मेक श्योर इफ़ यूर अ फैन यूट्यूब पे आके सेलेक्ट करके सब्सक्राइब कर दे, इवन दो इफ यू नॉट वॉचिंग, इट हेल्प्स इन सम वेज। अच्छा, बाकी ये कि यू कैन सपोर्ट दिस चैनल ऑन patreon.com/ganjiswag and that is the driving force behind this show, this channel, because again there are no products being pushed through this channel और बाकी आप सबको पता ही है। खैर चलते हैं आज की ईमेल्स की तरफ। पहली email says, buying citizenship. Dear Junaid, Assalamu alaikum. Hope this email finds you in good health. Please keep my identity anonymous. I have mentioned in multiple places to not mention some information as my friends and family are regular listeners. I will be identified in no time. I really appreciate your evaluation on the composition of my email and writing skills. I am sending us both an email and a patron message. My name is ABC, mid-20s. इंजीनियर ग्रेड और इन्होंने एक अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है पाकिस्तान से। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट योर वर्क। योर पॉडकास्ट हैव बीन अ लाइफ सेवर फॉर मी। यू आर माई गो टू फॉर driving, working, cooking, chores, and when I need to calm down, I love listening. Why do people who need to calm down listen to my voice? There are so many things. आज मैंने एक चीज़ डिस्कवर की, वो होता ना वीडियोस होती हैं डिफरेंट, स्लीपिंग टू द साउंड ऑफ रेन, स्लीपिंग टू द साउंड ऑफ ओशन। आज थी कि स्लीपिंग टू द साउंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 फायरिंग वाइल यू आर स्लीपिंग इन द ट्रेंचेस। यार क्या यूट्यूब पे आप कुछ भी डालो मिलता है। तो वर्ल्ड वॉर 1 की वो बड़ी ज़बरदस्त मज़े की दूर फायरिंग हो रही है। कराची वाला टाइम याद आएगा आपको, दूर फायरिंग हो रही है, ग्रेनेड चल रहे हैं। सो या काम डाउन के लिए वो ज़रा सुन सकते हैं। आई लव लिसनिंग टू यू and find myself getting anxious when I run out of your podcast. I've heard some of your podcasts multiple times. I agree to most of your takes and disagree to some. You have changed me for the better. I've always wanted to do something for my country, which now that I'm earning, I'm finding avenues to do so. I believe subscribing to your Patreon falls under the same category given what you're doing for Pakistan. I will upgrade my membership tier as I get capable of doing so. Thank you very much. I appreciate that. Little background. I was born as eldest sibling and raised in Middle Eastern country to Pakistani parents. My dad used to earn enough to make the ends meet and ensure that we are safe, have good food and get good education. Even now that I am married, he goes above and beyond to support us. Alhamdulillah, I really lucked out well with the parents. I went to another city for 4 years of education in Pakistan and came back as the offers I got in Pakistan were max 35,000 per month. मतलब engineering आप कर रहे हो, उसके बाद 35,000 की नौकरी ऑफर हो रही है, क्या बात है। I always wanted to move to Pakistan from the Middle East growing up because there is no possibility of getting a citizenship. I'm a fairly dry guy, not very social, but do fine around people on a to-do basis. I moved back to Middle East, found a job and started working full-time in March 2022 as an engineer. Started saving up, got married to the love of my life in the beginning. Alhamdulillah, married life is going great. We have our own place close to my family, so we live independently but have the safety net when needed. Everything has its ups and downs, but alhamdulillah, nothing to complain. I am satisfied with my earning in the Middle East. अच्छा, कुछ ब्रैकेट्स से इसलिए मैं ब्रेक ले रहा हूँ क्योंकि वो ब्रैकेट्स यहाँ नहीं पढ़ने, वो मेरी नॉलेज के लिए। I've invested a fair amount of money with support of my family to ensure that me and my wife can live together here right after the marriage. Now, my only concern is the longevity of the system of life. I don't have any kids yet and no plans of any at the moment, but my kids will be the second generation of my family who possibly will be born and raised
here जो मिडल ईस्ट कंट्री से इनका ताल्लुक है, but no prospect of citizenship or any benefits. Don't get me wrong, life here is amazing. There are ups and downs which mainly comes from the color of my passport, but alhamdulillah, all is well. Your advice regarding getting a better passport resonates well with me, and now I have started to look for options. This email might get a little messy from here, and apologies for that. Our plan, my wife and I, we're planning to not raise our kids or retire in any Western or / European country. We want to stay in the Middle East, preferably where I am right now. My goal is to get a better passport, move back here, and get a better package. My cousins and friends are now applying for immigration and skill transfer to different countries, where I am more inclined towards saving for a few years and buying a passport of some island nation. In my opinion, this is a fair trade against the struggles that my family will have to face living somewhere for a few years and then getting a nationality. What is your opinion on it? We want to travel and explore Pakistan and the world, but we cannot explore properly because of Pakistani passport. The bottom line is, I want my kids to have a different passport so that they have the option of moving to a different place if they want to. I was fortunate enough to be born here and have an option to live here. My elder relatives are even retiring here. My legal loops with legal loops in the visa system, if it stays the same, then we might do the same. But I understand that it might not be the best solution. My personal plan for the future is to do masters, mainly to increase my earning potential. I fulfill my knowledge, information, and intellectual cravings from books and internet. I was proven right after my bachelor's that degree is only a stepping stone to earn. They don't equip us well enough to actually work based on our degree. I initially thought it was due to Pakistan's education system, which is true, but now in general the world is moving towards skill-based jobs rather than degree-based jobs. I have started looking for remote work and also secondary sources of income so that I can afford to live here, even if I lose my job for a few months or plan for a long vacation. You are a well-spoken, well-educated, and well-traveled individual. You have the opportunity to interact with people from all walks of life. Your advice on the matter will be highly appreciated. Do you think it is worth to buy a citizenship instead of the conventional route? Given my timeline, I believe I can save up enough in the next 10 to 15 years to buy a passport. I have not heard much about this topic on your podcast. I believe it will be a nice addition to the series. Another option growing in my mind is for the both of us to move somewhere for education on scholarship and then pursue the citizenship. The main goal is to raise our kids in a place where they feel safe to practice their religion the same way we do and are not susceptible to the indoctrinated with the Western methodologies. I believe the reason why I'm still close to my religion and try my best to stay on it and practice it well is because I grew up in a place which allowed me to explore it properly without getting fatwa. I want my kids to grow up in a similar environment and make their own choice when they get to it. A good passport is vital to the option of choice. Please comment. You were here in this country last year and I wanted to meet you, but believe me, I was so close to just showing up where you were based on your Insta stories just to see you and possibly say hi, but didn't, as it felt like an invasion of trust that you put between yourself and your viewers when you put yourself on the internet. Next time you are here, please look into arranging a patron meetup so I can say hi to you and possibly have a chat. I'm possibly crossing a line here, but I would love to host you at a few restaurants so that you can try some foods that I find amazing over here, or maybe I'll give you a list so you can try them at your own convenience. I'm sorry if it feels too much of a fanboy moment. I'm willing to participate in any way in your philanthropic work for Pakistan. Looking forward to your response. Thank you so much, Engineer साहब वो मिर्ज़ा वाले नहीं दूसरे. So आपने ईमेल सुनी, मेरे पेट्रन भी हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंस्टा वाली बात आपने की, a lot of influencers what they do, वो ऑलरेडी जब पाकिस्तान आ चुके होते हैं तो दूसरे मुल्कों की स्टोरीज आ रही होती हैं, एंड मेनली रीज़न बीइंग कि वो अगर कहीं की अपडेट करते हैं तो लोग पहुंच जाते हैं. अगेन आई एम ओके टू मीट पीपल, बट देन पीपल कैन बी ऑफ एनी सॉर्ट, राइट. आई मेट फादी, माई गुड फ्रेंड फ्रॉम न्यूयॉर्क, जो कि पार्टली दुबई में भी होता है, आप अक्सर मेरी स्टोरीज पे देखते हैं. दैट्स हाउ आई मेट हिम. मैं एक म्यूज़ियम में गया हुआ था, आई वाज पोस्टिंग स्टोरीज. ही केम ओवर, मुझे अच्छा लगा, बंदा सही लगा, एंड नाउ वी आर गुड फ्रेंड्स. तो येस, बट इट कैन ऑल्सो गो ईदर वे, और सो या इट कैन बी डेंजरस. तो बहुत से लोग इस तरह करते हैं. मैंने भी कुछ हद तक जो है डिलेड स्टोरीज डालना शुरू कर दी फॉर द सेम रीज़न, बिकॉज यू डोंट नो, कोई आके छुरा ही ना मार देना कि मुझे आपकी बात वहाँ पसंद नहीं आई थी. तो यू नेवर नो, ज़रा नट जॉब्स होते हैं ना हमारे यहाँ बहुत. सो ये चीज़. दूसरी चीज़ आपने जो मेंशन की, इट वाज लेस अबाउट द सिटीजनशिप, उस पे मैं आता हूँ. मोर अबाउट कि आप करियर किस तरह देख रहे हैं यहाँ पे वहाँ पे. आप चाह रहे हैं कि अपना स्किल को
पॉलिश करें, विच इज़ ग्रेट. मास्टर्स डिग्री और एनी soft skill that you might want to develop, कोई कोर्स, एनीथिंग इज ऑलवेज अप्रिशिएटेड इन जो आपकी फील्ड है. देख रही बात पासपोर्ट की, इस पर मैंने शायद एक आध बार बात की है, अगर वो मिस हो गई तो मैं दोबारा सुना देता हूँ. अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, उसने अपनी सिटीजनशिप गिव अप की, पाकिस्तान का नहीं है, ठीक है, किसी और मुल्क का है, और उसने सेंट किट्स एंड नेविस, ये जो आइलैंड है वेस्ट इंडीज़ के, उसका उसने पासपोर्ट खरीदा. राइट नाउ हिम बीइंग अ श्रूड बिजनेसमैन, उसने कैलकुलेशन की, हालांकि उसका पासपोर्ट हमसे बेहतर था बट नॉट स्टिल नॉट द बेस्ट इन द वर्ल्ड. एंड एज अ बिजनेसमैन, आपको याद होगा कि अरसलान ऐश जो कि हमारे टेकन के चैम्पियन हैं, उन्होंने एक ट्वीट की थी पिछले महीने, आई विश आई डिडंट हैव पाकिस्तानी पासपोर्ट. और उसकी फ्रस्ट्रेशन ऑब्वियसली, जो कभी मुरीद के से बाहर नहीं गए उन्होंने तो नीचे गालियाँ ही दी उसको, मगर जो लोग वेल ट्रैवल्ड हैं या जो लोग ट्रैवल फ्रीक्वेंटली करते हैं वो अंडरस्टैंड करते हैं इस पेन को, कि बार बार आप, मैं यार उस दिन स्टोरी बनाना भूल गया, जब मैं आखिरी वीज़ा कौन सा अप्लाई किया था मैंने, आई थिंक इट वाज शेंजन. मैं वो मंगवाने लगा था उसामा से कि यार वो वेट मशीन लेकर आओ, और उस पर डॉक्यूमेंट्स जो थद्दा है ना, मैं वे करना चाह रहा था कि कितना पेपर जाता है एक वीज़ा एक्वायर करने के लिए. राइट और वो भी वहाँ का जहाँ मैं 6 बार जा चुका हूँ, हर बार इतना पेपर वर्क देना पड़ता है. राइट नाउ, और फिर जाहिर है उसमें डिलेज होते हैं, अपॉइंटमेंट आपको मतलब की नहीं मिलती, महीने 1.5 महीने बाद अपॉइंटमेंट मिलती है, फिर डॉक्यूमेंट सबमिशन होती है, फिर उसके 15-20 दिन 30 दिन बाद रिप्लाई आता है. अब अरसलान ऐश बीइंग वर्ल्ड चैम्पियन, अब जाहिर है जिस तरह फार्मूला 1 का सीज़न होता है ना, एक पूरे सीज़न पे निकली हुई होती है टीम, पहले मोनाको में होती है, फिर बाकू में होती है, फिर अबू धाबी में होती है. राइट इसी तरह जो गेमर्स हैं, ई गेमर्स हैं, उनका भी टूर्नामेंट बैक टू बैक चल रहे होते हैं. अब अगर मलेशिया में उसका एक टूर्नामेंट है, उसने मलेशिया का वीज़ा लगाया चला गया, एंड देन वो पूरा सीज़न लाइनअप हुआ है ना, और फिर सिंगापुर में आ गया, फिर साउथ कोरिया में कुछ आ गया, फिर जापान में कुछ आ गया. अब जिनके पास दूसरे पासपोर्ट है, देर लिटरली बाइंग टिकट्स लाइक डोमेस्टिक, जैसे हम खरीदते हैं पेशावर का, लाहौर का, इस्लामाबाद का, वो लिटरली टिकट खरीदते हैं. आपने इंग्लिश फिल्मों में देखा होगा ना, जब लड़की कहती है आई कैन नॉट डू दिस, इट्स ओवर, और वो चली जाती है, और फिर वो काउंटर पे जाता है, गिव मी अ टिकट टू पेरिस. वो इसलिए कहते हैं उसके पास अमेरिकन पासपोर्ट होता है. राइट दे फकिंग मूव अराउंड द वर्ल्ड लाइक अ डोमेस्टिक, जिस तरह हम घूम रहे होते हैं. ओके तो ऑब्वियसली उसने फिर फ्रस्ट्रेट हो गया कि मैं हर बार फिर पाकिस्तान आऊँ, फिर मैं इतने सारे डॉक्यूमेंट जमा कराऊँ, फिर मैं बैठूँ, उधर चैंपियनशिप निकल जाती है. सो वी एंड अप लूजिंग अ लॉट बिकॉज हमारी मूवमेंट जो है इतनी फ्रीक्वेंट नहीं हो पाती. और ये वीज़ाज आपको वन टाइमली मिलते हैं, कुछ ज़्यादातर इस तरह के साउथ कोरिया, सिंगापुर, ये आपको डिफाइन करना होता है जी मैं इस पीरियड के लिए जाऊँ, तो उसी पीरियड का मिलता है. स्टार्ट लाइक आपने साल का ले लिया, 2 साल का ले लिया, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट मोस्टली यही सीन होता है. खैर, तो माई फ्रेंड व्हाट ही डिड वाज, ही इज़ अ बिजनेसमैन, उसको ट्रैवल करना होता है, एंड ही कम्स फ्रॉम वेरी अफ्लुएंट फैमिली. तो उनका वो वाला सीन है कि रात को बॉयज़ का प्लान बना तो एम्स्टर्डम चले गए जहाज़ में बैठ के, वो उस तरह वाला सीन है. राइट तो एक PTV पे ड्रामा आता था, ताहिरा वास्ती मरहुमा का वो ड्रामा था, और उसमें एक वो सीन था कि आज दिल कर रहा था चपली कबाब खाने का, तो हम पेशावर चले गए. तो हमारे जहन में, मैं लोअर मिडिल क्लास के जहन में ये बात ही समझ नहीं आई कि लोग चपली कबाब खाने पेशावर कैसे जा सकते हैं, मगर जाते हैं. बहुत से लोग ऐसे, माई एक्स बॉस, उनकी बेगम और उनकी सास यानी माँ बेटियाँ सुबह की फ़्लाइट से दुबई जाती थी, सारा दिन शॉपिंग करती थी और रात को वापस आती थी, एवरी थर्सडे. उनका ये सीन था. तो ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में. ऐसे भी लोग हैं, समवन वेरी फेमस, और उनके रिश्तेदार मेरी पॉडकास्ट पे भी आया था, आई एम नॉट गोना मेंशन हु, वो लंच करने अपने प्राइवेट जेट पे दुबई चली जाती हैं कभी कभी. हैं ऐसे लोग पाकिस्तान में. राइट एनीवे, सो बात क्या कर रहा था मैं, हाँ, तो मेरा जो श्रूड बिजनेसमैन है उसने देखा कि यार इस पासपोर्ट पे मैं बड़ा फंस रहा हूँ और बड़े डिलेज आते हैं और बिजनेसमैन को फ़ौरन मूव अराउंड करना है. तो उसने वर्कआउट किया पूरा मैथ, और उसने ये सेंट किट्स एंड नेविस का जो पासपोर्ट है ये $1.5 लाख का मिलता है. राइट अब उसने इसको इस तरह डिवाइड किया, टाइम इज़ मनी फर्स्ट ऑफ ऑल. राइट आपका टाइम बचता है. मैं जो पूरे साल ट्रैवलिंग करता हूँ ना, जनवरी से लेके मार्च तक मैं पाकिस्तान में ही होता हूँ, और उस पूरे पीरियड में मैं पूरे साल के वीज़ा लगवा रहा होता हूँ, बिकॉज मुझे ज़ाहिर अंदाज़ा होता है कि मैंने कब कब कहाँ जाना है. राइट एक शेंजन का होता है, अब वो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के लिए भी अलग मुझे लगवाना पड़ा, फिर सारा चलते रहते हैं. तो उसने क्या किया, पूरा मैथ वर्कआउट किया, अच्छा $1.5 लाख है, इसको डिवाइड किया. उसने अपनी उम्र के साथ लगाया कि मेरे पास अभी 25 से 30 साल की ट्रैवलिंग बाकी है मेरी ज़िंदगी में. राइट उसने उसको डिवाइड किया $1.5 लाख से, तो महीने का
यार मैं कोई गलत मैथ ना कर पाऊँ, फिर आप लोग मुझसे वो ना करें, मैं ज़रा एक बार मैथ कर ही लूँ इसके. सो फॉर एग्जांपल 30 साल इंटू 12 महीने, राइट, 360 महीने. अगर हम $1.5 लाख को डिवाइड करें $360 से, एक 360 महीनों से, तो महीने का $416 आता है, राइट, विच इज़ लाइक 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए. अब अगर मैं आपको कहूँ कि यार आपको महीने का सिर्फ लाख 1.25 लाख रुपए देना है, बट यू कैन ट्रैवल टू 150 कंट्रीज लाइक दिस. मूड बना, जहाज पकड़ा जापान, मूड बना, जहाज पकड़ा ब्राज़ील, अर्जेंटीना, बर्किना फासो. हमें बर्किना फासो का भी पासपोर्ट वीजा लेना पड़ता है. तो उसने बोला यार $400 अ मंथ इज वर्थ इट, एंड लाइक आई सेड ही इज एन अफ्लुएंट बिजनेसमैन, ही कैन अफोर्ड इट. तो उसने ठग से ले लिया. अब वो उसने ये तो ले लिया. अच्छा, मेरा भी किसी ज़माने में मूड बना था. हमारी फ्रेटर्निटी में देयर माइट बी पीपल, आई एम नॉट मेंशनिंग हाउ मेनी, ये ना उनका जेंडर या वगैरह वगैरह, बट दे ऑल्सो कैरी दिस थिंग. ओके, अब आप गेस करते हैं कौन है, आपके जहन में ही नहीं आएगा, कमेंट करते जाए, आपके जहन में आएगा ही नहीं वो बंदा, बंदा या बंदी. ओके, एनीवे, मुझे भी ख्याल आया कि यार ये मैं 2 साल पहले जब ये मेरे फ्रेंड ने करना शुरू किया प्रोसेस, मैंने बोला यार ये है तो बड़ा महंगा सौदा. 3 करोड़ रुपए बन रहे थे उस वक्त जब $200 का डॉलर, तब तो डॉलर ही 300, ऑलमोस्ट 300 का है, राइट. सो अब ये बात 4.5 करोड़ रुपए चली गई, विच इज़ अ लॉट ऑफ मनी, राइट, टू इन्वेस्ट इन अ पासपोर्ट. तो मैं सोच रहा था अच्छा अगर बिटकॉइन का छक्का लग गया वगैरह वगैरह, बिटकॉइन $5 लाख का छक्का, मैंने खैर कभी खरीदा नहीं बिटकॉइन. आई एम जस्ट सेइंग दैट्स द क्लोजेस्ट, दैट्स द ओनली इजीएस्ट वे टू गेट फक यू मनी, एंड पीपल हैव मेड अ लॉट ऑफ फक यू मनी, राइट. ऐसा ही है मूसा. तो मैंने बोला यार ये मैं इन वाले पैसों से, तो यूट्यूब के पैसों से तो कभी मैं जोड़ ही नहीं पाऊंगा ना इतने सारे. तो ये इसी तरह आ सकता है, कोई छक्का लगे बिटकॉइन का और फिर मैं ये करूँ, बट इट नेवर केम टू फ्रूइशन. देन आई स्पोक टू समवन हु स्पेशलाइजेज इन बॉर्डर कंट्रोल, दिस दैट ये वो. मैं इज इट वर्थ इट? तो उसने ये बोला कि बिकॉज a lot of people are doing this, इसमें फिर because of cryptocurrency a lot of people became millionaires. और उन सब का यही था, कोई इंडिया का मिलियनेयर है, कोई कहाँ का है. उसने बोला यार मेरे पासपोर्ट पे तो गेम नहीं, उसने खरीद लिया डोमिनिकन रिपब्लिक या सेंट किट्स एंड नेविस वगैरह वगैरह. अब दे आर, या फिर अ लॉट ऑफ टेररिस्ट या फिर स्मगलर्स, अगेन पीपल who can throw that kind of money, started buying those citizenship and ending up in France, ending up in England without any scrutiny. अभी क्या होता है जब हम शेंजन अप्लाई करते हैं या यूके का पासपोर्ट अप्लाई करते हैं, हमारी कुत्ते वाली स्क्रूटनी होती है, इतनी होती है, और ऐसी ऐसी एजेंसियों से होती है, आपको तो नाम भी नहीं पता होंगे आपके मुल्क में एजेंसियां कितनी हैं, राइट. पूरी ग्रीन होता है, उसके बावजूद देखें ह्यूमन एरर कहीं भी हो सकता है और वो होता है, टेररिस्ट निकल जाते हैं इधर उधर. तो ये तो सबसे आसान तरीका रहा. और टेरर फाइनेंसिंग में आपको पता ही है दुनिया में बड़ा पैसा है इस चीज़ में, तो ये तो बड़ा आसान तरीका है कि भाई वहाँ का पासपोर्ट लो, कोई पूछेगा नहीं, बस सीधा आपने यूके की या यूएस की इमिग्रेशन को बस क्रॉस करना है. और अगर आप बातों में तेज़ हो तो आप कर सकते हो, या यू कैन बीट द सिस्टम. तो फिर कुछ, सो दैट फ्रेंड, दैट पर्सन हु स्पेशलाइजेज इन बॉर्डर कंट्रोल, उसने बोला कि देर हैव बिन केसेस इन यूके स्पेशली जहाँ पे अब रोका जा रहा है कि भाई तू कौन से सेंट किट्स है, तू तो माजिद नाम है तेरा, तेरी शक्ल तो कराची वाली है, राइट, या यू लुक लाइक साउथ एशियन, तुम्हारा वहाँ क्या लेना देना है. अच्छा नहीं, मेरा बिजनेस है, मेरी प्रॉपर्टी है. ठग से पता क्या पूछते हैं, अच्छा वहाँ की जो गाड़ियाँ होती हैं उनकी नंबर प्लेट का कलर क्या होता है, पकड़ा गया बंदा. इस तरह बहुत सारे पाकिस्तानी लोग जो अफगान रेफ्यूजीज बन के ट्राई करते हैं यूरोप में एंट्री की, यही इस और इस जैसे बहुत सारे सवालों में पकड़े जाते हैं, राइट. कराची का मैं आपसे कोई भी सवाल करूं, आप बता दोगे कि भाई यहाँ पे जो कचरा उठाने वाली इदारा है उसका नाम क्या है, KMC, राइट. लाहौर का कोई होगा तो LWMG, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट, LWMC, राइट. अब काबुल का बताएं आप. अब आप अगर कह रहे हो मैं सारी जिंदगी काबुल में रहा हूँ, तो भाई तेरा कचरा कौन उठाता रहा है, बता दो मेरा नाम. लोग यहाँ पकड़े जाते हैं, राइट. सो अ लॉट ऑफ पीपल यूजिंग दोज राउट्स विद दोज सिटीजनशिप्स ट्राइड एंटरिंग. अ लॉट ऑफ पीपल, अच्छा माय फ्रेंड इज ट्रैवलिंग फ्रीली, वो मुंह उठा के हंगरी चला जाता है, मुंह उठा के बुडापेस्ट चला गया, मुंह उठा के इधर उधर, और वो जा रहा है, एंड ही इज़ रियली एंजॉइंग माशाल्लाह, एंड आई होप ही कीप्स एंजॉइंग दैट वे. बट ये वाले कंसर्न भी आने लग गए हैं नाउ. एंड ऑल्सो some of these countries, डोमिनिकन रिपब्लिक हो गया, सेंट किट्स की बात कर लें,
इनके इनके अब आप बोलोगे यार इन आइलैंड्स का हमने नाम नहीं सुना, इनका पासपोर्ट इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है, 150 कंट्री में क्यों है? क्योंकि ये क्वीन के डोमिनियन में आते हैं, राइट? ये एक्स कॉलोनीज हैं, एक्स कॉलोनी हम भी हैं मगर हमारी वो औकात नहीं है, कोई कोई चक्कर है, राइट? कि डोमिनियंस अलग हैं, कॉमनवेल्थ अलग है, इनके भी बहुत सारे ब्रांचेस होती हैं, राइट? तो उनको वो वाली चीज़ें मिली हुई हैं। तो बिकॉज दे हैव फिगर्ड आउट कि अरे हमारे नाम पे ये गंद हो रही है, तो उन्होंने वहाँ कंप्लेन करना शुरू की कि जो मुंह उठा के $1,00,000 $1.5 लाख दे रहा आप उसको ये पकड़ा रहे हो, वो हमारे मुल्कों में घुस रहे हैं। अच्छा, अ लॉट ऑफ दीज कंट्रीज एक्स कॉलोनीज, वहाँ पे अब ये भी चल रहा है कि भाई ये आज तक हमारे झंडे पे यूनियन जैक क्यों है? जैसे यूनियन जैक आपको ऑस्ट्रेलिया में भी मिलेगा, न्यूजीलैंड में भी मिलेगा, इसी तरह बारबाडोस टोबैगो, नॉट बारबाडोस टोबैगो बट लाइक ये वेस्ट इंडियन आइलैंड्स हैं, सम ऑफ दोज आइलैंड्स विल ऑल्सो हैव यूनियन जैक ऑन देम। तो वहाँ पे सेपरेटिस्ट मूवमेंट भी हैं कि भाई इनको हटाओ, ये क्यों आज तक ये लेबल लेके हम फिर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो अगर वो डोमिनियन से हट गए देन दैट पासपोर्ट इज़ वर्थ शिट, क्योंकि फिर वो वेस्ट इंडीज़ का पासपोर्ट है, भाई कोई नहीं चाहता। तो अभी जब तक वो डोमिनियन के अंदर है यूके के, तो उनकी वैल्यू है, राइट? अब ये चक्कर आज हम $1,00,000 $1.5 लाख लगा लें, 2 साल बाद ख़त्म हो जाए फिर, तब तो नुकसान हो गया ना। सो ये सोच के मैंने फिर उस तरह सोचना ही छोड़ दिया कि यार ये एक तरीक़ा कार किया जा सकता है, राइट? सो अगेन, जिन लोगों के पास है यूट्यूब पे कमेंट्स अनोनिमस होते हैं, आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, जो लोग कई सालों से कर भी रहे होंगे, या वो लोग जिन लोगों ने किया एंड डेंट वर्क आउट, या फिर ये कि वो हाफ हार्टेड है मेरी तरह। खैर मैं तो फुली हार्टेड हूँ कि मैंने नहीं करना ये वाला राउट, बट जो लोग हाफ हार्टेड है इन वजूहात की बिना पे, तो आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। तो इसमें रिस्क है, प्लस $1.5 लाख कमाने में जैसे आपने बोला 10-15 साल लगेंगे, भाई उससे कम टाइम में मास्टर्स प्रोग्राम लो, कोई इरास्मस प्रोग्राम लो, स्कॉलरशिप लो, डिग्री लो, PR लो, नौकरी लो, जो काम तुम 15 साल में पैसे जोड़ के, अच्छा पैसे तुम आज के हिसाब से तुम्हें लग रहा है कि मैं जोड़ लूँगा, बेटा 1-2 बच्चे होना शुरू हो जाएंगे ना, फिर वो आपके कैसे डिप्लीट होना शुरू होंगे फंड्स। प्लस क्या गारंटी है जिस मुल्क में आप हो, क्या गारंटी है इकोनॉमी की? भाई रिसेशन पे हम उस वक्त बैठे हुए हैं, तो 10-15 साल की तो प्लानिंग बहुत दूर की है। तो इससे आसान तरीका एज ऑफ नाउ ये है कि आप कोई स्कॉलरशिप लें, मियाँ बीवी दोनों जाके पढ़ें, वहीं काम भी करें, नौकरी भी करें, PR लें, 6-7 साल के अंदर अंदर आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। नाउ कमिंग टू द मेन क्वेश्चन कि भाई बच्चा जो है इस्लामी माहौल में हो, अगेन आई कैटेगोरिकली अग्री विद यू, मिडल ईस्ट इज़ द बेस्ट प्लेस टू रेज योर किड्स, अगर वो स्पॉइल्ड अरबियों का दोस्त ना बने तो खैर, बट मोस्टली इट्स द बेस्ट प्लेस बिकॉज यू गेट द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड, फ्रीडम भी है, सेफ्टी भी है, और अजान की आवाज़ आती है। आई वॉज इन कतर फॉर द वर्ल्ड कप, और मैं बड़े अरसे में उस पिछले साल पूरे साल UAE नहीं गया था, कुछ 6-8 महीने का गैप आ गया था। सो उसके बाद जब मैं दोहा गया और असर की अजान हुई, ज़ोहर की अजान हुई, तो यार वो एक बड़ी नॉस्टैल्जिक फीलिंग थी, क्योंकि शारजा में भी और दुबई में भी इस तरह आवाज़ आती थी, और वो एक्सेंट अलग है, वो अजान का तरीका अलग है, तो वो और आपका दिल नरम हो जाता है, और वहाँ पे ऑडियो लेवल ज़रा मेंटेन्ड होता है। यहाँ की तरह नहीं कि जितना फटा हुआ स्पीकर है, या मौलवी साहब का गला जितना फटा हुआ है, खल्ली बल्ली फाड़ दो, बिल्कुल कानों में दर्द कर दो, और ये फैक्ट है, इस पर बात ना ही करें हम तो हम जिंदा बचेंगे। बट तो मैं बड़ा मुझे फील हुआ कि यार लाइक दिस इज़ लाइक दिस दैट मेड मी वेरी इमोशनल। सो ये कंसर्न तो है कि यार अब वहाँ पे द वे थिंग्स आर, लोगों को कंसर्न होता है कि भाई अब वो स्कूल्स के अंदर जो है ना रेनबो फ्लैग और प्राइड फ्लैग और ट्रांस आ रहा है, आपको बच्चों को किंडरगार्टन में किताब पढ़ा, स्टोरी टेलिंग कर रहा है। A lot of people are protesting, and not just Muslims, like even people who are from other faith are also questioning those things. Some people are not comfortable with this, some people are comfortable with this, right? तो ये वाले concerns बहुत हो रहे हैं, और जो मुस्लिम फैमिलीज जिनसे मैं मिलता हूँ उनका प्राइमरी कंसर्न यही आता है। सो उसमें फिर बेस्ट केस सिनारियो यही है कि वही 6-7 साल आप अगर इसको एक्वायर करते हो, एंड देन इफ़ यू डिसाइड टू मूव बैक टू मिडल ईस्ट, दैट्स द बेस्ट केस सिनारियो। और बहुत से लोग ये करते भी हैं। पीपल यूज़, मैं हमेशा ही कहता हूँ, यूज़ मिडल ईस्ट एज योर लॉन्च पैड इनटू वेस्टर्न कंट्रीज़। उससे होता ये है कि आपकी अगर फाइल अच्छी हो ना 5-6 साल 10 साल, और आप तो पैदा भी वहीं हुए हो,
तो दूसरे मुल्कों के लिए आपको एक्सेप्ट करना आसान हो जाता है कि हाँ यार यूएई ने वेरीफाई किया हुआ है, कतर ने वेरीफाई किया हुआ है, सऊदी में ये रहता रहा है, क्लीन स्लेट है इसकी, तो वहाँ तक ओके है तो यहाँ तक भी ओके है, तो आपके रास्ते आसान हो जाते हैं. सो अ लॉट ऑफ पीपल व्हाट दे डू इज़ दे यूज़ देयर अर्ली करियर या मिड करियर, जाते हैं पीआर ली, चाहे वो कनाडा की हो या ऑस्ट्रेलिया की हो, नेशनैलिटी ली, वापस आए. अच्छा वापस आए, अब आपका पासपोर्ट चेंज है तो आपकी नौकरी का ग्रेड भी डिफरेंट हो जाता है, आपका सैलरी का पैकेज भी डिफरेंट हो जाता है. ये रेसिज्म मिडिल ईस्ट में एग्जिस्ट करता है, माने या ना माने, ठीक है ना. वो गोरा जो शायद झाड़ू ही लगाता हो अपने मुल्क में, बट चूंकि वो गोरा है, वो जनरल मैनेजर या वो ऊपर में, वो टियर 1 में ही आता है, वो गोरा कभी लोअर लेवल पे दिखेगा ही नहीं. वहाँ आपको इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी यही आपको दिखेंगे, राइट. सो ये सीन तो है. So that's the best case scenario, not just for you, जितने लोग सुन रहे हैं, this is, and a lot of people are exercising this. अच्छा, कुछ लोगों का ये कहना है, and rightfully so, कि it's an illusion that you can save money and it's tax free in Middle East, which is not, and it's true, क्योंकि schooling बहुत महंगी है मिडल ईस्ट में. 30-30 हज़ार डॉलर लग जाता है साल का, अगर आप कॉलेज लेवल की भी बात करें तो. whereas in Europe it's absolutely free, या फिर जो है काफ़ी सब्सिडाइज होती है. हेल्थ केयर आपको मिल जाता है, हेल्थ केयर और एजुकेशन, यही दो चीज़ें हैं भाई जिसने यूरोप को यहाँ रखा हुआ है और हमें यहाँ रखा हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ ये दोनों चीज़ें नॉन एग्जिस्टेंट हैं. मिडल ईस्ट में है अच्छी, केयर भी अच्छी है, महंगी है, यूनिवर्सिटीज़ भी अच्छी हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप दोहा की बात करें, तो दोहा में आपको ANM भी मिल जाएगा कैंपस, आपको कौन सी यूनिवर्सिटी है, नॉट स्टैनफोर्ड, यार I've been to that कैंपस, टेक्सास A&M का कैंपस है, और दो और है यार, नाम क्यों जहन से निकल रहा है, कमेंट में लिख देना. तो वो वहाँ पे है, और उसको बनाने की वजह ये थी, ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ दीज कैंपसेस आर गोइंग ओवरसीज़, कि जो बच्चे अमेरिका नहीं आना अफोर्ड कर सकते, इंग्लैंड नहीं आ सकते, हम वहाँ आ जाते हैं, राइट. जैसे आई थिंक इंडिया में भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. तो उसका फ़ायदा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मुस्लिम फैमिलीज़ हैं, पैसा बहुत है, फॉर एग्जांपल कतरीज़ या सऊदीज़, बहुत पैसा है, लेकिन बेटी को यार वेस्ट में नहीं भेजना, बेटी बिगड़ ना जाए, या फिर ये कि ओवर प्रोटेक्टिव हैं, या लड़के ना बिगड़ जाएं, तो अच्छा जी दोहा में ही खोल दिए, ठीक है ना, 3 कैंपसेस, एंड दे आर ऑल कनेक्टेड विद, इट्स कॉल्ड एजुकेशन सिटी, एंड दे आर ऑल कनेक्टेड विद, क्या बोलते हैं, ट्राम में बैठे A&M गए, एक क्लास ली, उतरे, दूसरे पे गए. मैं यहाँ गूगल कर लेता हूँ यार, ऐसे नाम आता है. हाँ जी, तो जॉर्ज टाउन है, कार्नेगी मेलन है, और जब मुझे वहाँ पे टूर दिया गया तो मुझे बताया गया कि इट्स सो फ्लूइड. हमारे यहाँ क्या होता है, चूंकि आपने एज अ 14 ईयर ओल्ड डिसाइड किया था कि मेडिकल, अब आप जिंदगी भर मेडिकल ही रहें, आप इंजीनियरिंग नहीं पढ़ सकते. मेरे इतने दोस्त जो यहाँ से डॉक्टर बन के गए, अमेरिका में इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे, कोई कोडर बन गया, कोई क्या बन गया. दे अलाउ कि यार पीपल इवॉल्व, उनका दिमाग भी इवॉल्व करता है. हमारे यहाँ सजा दी जाती कि तूने 14 साल की उम्र में साइंस क्यों ली थी, अब तू साइंस पढ़ सारी जिंदगी, या कॉमर्स ली थी, अब तू साइंस नहीं पढ़ सकता. ये क्या बकवास है. सो आपने एक क्लास A&M में ली, एक क्लास आपने जॉर्ज टाउन में ले ली, एक आपने दूसरी जगह ले ली. इतना फ्लूइड है, आई वाज रिमार्केबल. खैर, तो मैं बात क्या कर रहा था. सो या, एजुकेशन इज़ वेरी एक्सपेंसिव, हेल्थ केयर इज़ वेरी एक्सपेंसिव ना. देखो, यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट. आपको यूरोप में ये चीज़ें मिल जाएंगी तो अजान की आवाज़ नहीं आएगी, इस्लामी माहौल नहीं मिलेगा. इस्लामी माहौल चाहिए, मगर टेंशनें बहुत हैं, वो पाकिस्तान है. इस्लामी माहौल नहीं, मजहबी माहौल है. इस्लामी माहौल तो बिल्कुल भी नहीं है, मजहबी माहौल है, राइट. तो कोफ्त है, अच्छा फिर इसका बीच का रास्ता मिडल ईस्ट है, तो चलो, मगर वहाँ पे चीज़ें बड़ी महंगी हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो प्राइस आपको पे करनी है. नाउ यू हैव टू डिसाइड. नाउ आई एम नॉट सेइंग पाकिस्तानीज और मुस्लिम्स अराउंड द वर्ल्ड who have raised their families in America, Canada, Australia, England, they haven't done a good job. बहुत से यार देखो, ये घर के माहौल से होती है. मैंने तो ये चीज़ समझी है और सीखी है, ये चीज़ घर के माहौल से आती है. घर का माहौल अच्छा है, बाहर का ठीक है, इन्फ्लुएंस होता है, मगर आपने जब एक बार चीज़ें अच्छी तरह स्ट्रिक्टली चीज़ें सेट कर दी, तो बच्चा नेवर क्रॉसेस अ लाइन बेसिकली. तो मगर ठीक है, आपका कंसर्न वैलिड है, और आजकल काफ़ी पेरेंट्स यही सवाल मुझसे करते हैं. तो ये है बाइंग अ सिटीजनशिप पे बहुत सारे लोग होंगे जो कि बिल्कुल कहेंगे, अगेन मेरे पास $1 मिलियन होते तो मैं ले लेता, तो मैं ये रिस्क बिल्कुल ले लेता, क्योंकि मिलियन में से 1.5 निकालना इतना मसला नहीं है,
क्योंकि मैं फिर वो 1.5 अगर निकालता तो मेरे पास 8.5 होता, तो 8.5 को कहीं लगा के मैं फिर 1.5 बना लेता. बट चूंकि वो नहीं है तो मैं ये रिस्क नहीं लूंगा. इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ मनी यू कैन डू इट, गो फॉर इट, टेक द रिस्क. बहुत से लोग, हाँ एक और चीज़, टर्की वाला राउट ले रहे हैं कि जी अपार्टमेंट ले लेते हैं, या पोर्चुगल वाला राउट ले रहे हैं, D7 वो 3 साल का, वो कहने को 3 साल का है, वो खींचते खींचते 6-7 साल, क्योंकि पोर्चुगल को भी पता है जिसने 3 साल लगा दिए बाकी के 3 भी लगाएगा. तो वो चीज़ें डालते रहते हैं, अच्छा जी पॉलिसी चेंज हो गई, ये हो गया वो हो गया. आई मेट अ लॉट ऑफ पीपल इन लिस्बन हु कंप्लेंड अबाउट दिस थिंग. मैं वीडियो बनाना चाह रहा था बट आई ऑल्सो डिडंट वांट टू इन्फ्लुएंस. यार एक ये भी होता ना, लाइक आई रियली वांट यू गाइस टू गो समवेयर एल्स एंड एन्जॉय लाइफ, बट आई ऑल्सो डोंट वांट टू कम अक्रॉस कि यार मैंने डिक्लेयर कर दिया कि ये बिल्कुल ही बकवास जगह है और सारे बाहर चले जाए. मैं ये भी नहीं चाहता कि मैं ऐसा कम, आई डोंट वांट टू कम अक्रॉस एज कि वो शिंडलर्स लिस्ट की तरह सबको निकाल दिया हुआ है. ऐसा नहीं है भाई, यहाँ भी रहना, यहाँ भी काम करना है. जो जा सकता है, जिसको मोहब्बत है वो यहाँ रहे, जो जा सकता है, जो जाना चाहता है वो भले चले जाए, कोई मसला नहीं है. सो आई डिडंट मेक अ वीडियो. मुझे अच्छे लड़के मिले थे कुछ पंजाब के, और पंजाब से काफ़ी सीन है. बहुत से लोग किश्तियों में बैठ के पंजाब से ही जाते हैं पोर्चुगल में, बिकॉज इट्स लाइक द फर्स्ट पोर्ट टेक्निकली, लाइक ग्रीस, इटली, ये सारे ये पहले ही आते हैं. एनीवे, और जो टर्की वाला राउट है कि जी अपार्टमेंट लेना, और ये देखें अगेन, देखो एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ Muslim country, and Muslim countries will always be subjected to, again, not मैं कोई बेचारगी वाला पॉइंट नहीं कह रहा, अपनी भी पॉलिसीज होती हैं, अपनी भी गलतियाँ होती हैं. टर्की इज़ इन लॉट ऑफ शिट विद देयर बॉर्डर्स, और वो सीरिया में भी घुसा हुआ है, फिर रशिया के साथ भी मसले मसाइल हैं, फिर लाइक इसराइल को मानता भी है लेकिन धमकी भी इसराइल को देता है, वगैरह वगैरह. एंड दैट रीजन इज़ वेरी वॉलेटाइल, सो यू नेवर नो कि अभी वो कहाँ खड़ा है, 10 साल बाद कहाँ खड़ा होगा. तो मैं नहीं रेकमेंड, मैं आई वुडंट डू दैट कि मैं वो फ्लैट ख़रीद लूँ फिर कितने लाख डॉलर का, और फिर बाद में पता चले जी उनकी करेंसी क्रैश कर गई. एक बार कर चुकी है, और अभी भी बड़े बुरे हालात थे 1-2 साल पहले तक. सो या आई मीन लेना है तो फिर यूरोप शोरोप आगे वाला देखो. सो ये सीन है भाई. अगेन इट्स अ सब्जेक्टिव मैटर, इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल के इट अप्लाइज फॉर एवरीवन. जिसके जो जिस पे फिट आता है, इफ़ द शू फिट्स गो फॉर इट. Again, I'm leaving it the option open. The best case scenario मैंने आपको बता दिया, पढ़ाई करने जाएं एंड फिर वहाँ से नॉलेज भी लेकर आए, पासपोर्ट भी ले आए, फिर भले कतर में रह लें, सऊदी में रह लें, दुबई में रह लें, जहाँ भी आप रहना चाहें. You get the best of both worlds. That's the ideal situation, ideal scenario. बट आई एम ओपन टू डिस्कशन. प्लीज़ जो लोग बाहर रहते हैं, जिन्होंने ये राउट्स अपनाए हुए हैं, या फिर वो डिसएग्री भी करते हैं, तो प्लीज़ ज़रूर मेंशन करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ओपिनियंस होंगे, ऑप्शंस होंगे, लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी होगी. अगेन टू मैनी कुक्स वाला भी सीन हो जाता है. द आइडिया इज़ नॉट टू कन्फ्यूज मोर पीपल, द आइडिया इज़ टू गैदर मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन, बिकॉज आई हैवंट लिव्ड दीज लाइव्स दैट आई टॉक अबाउट मोस्टली, राइट. दीज आर ओनली फ्रॉम अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो द आइडिया कि जो लोग इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर समझते हैं वो ज़्यादा बेहतर गाइड कर सकते हैं. सो अपना ख्याल रखिएगा एंड गुड लक टू यू. थैंक यू. और जी नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा बहुत मिलता जुलता है. सीकिंग एडवाइस ऑन कल्चरल डिफरेंसेस एंड फैमिली चैलेंजेस. हाई, आई एम ABC लिविंग इन France with my wife and 2 children. Basically, I'm from KPK, Pakistan, and moved to Paris in 2010 for my bachelor's degree. After completing my studies, I started working in France and settled there. I made many French friends who are very nice, friendly, caring, and welcoming. I was living a very happy life, excelling in my work until I got married. Yeah, until I got married से पहली सारी खुशियाँ होती हैं, पता नहीं क्यों. I'm just joking. My marriage was arranged with my uncle's daughter. She is not educated. Wow. She only attended a religious school, madrasa, and is a Hafiz Quran. Her father is a Pesh Imam in a mosque. In 2016, I came to Pakistan, got married, and brought my wife to France. After our marriage, I discovered that she holds very extreme views about Western people and always says, यहूद और निसारा हमारे कभी दोस्त नहीं हो सकते, ये हमारा मज़हब कहता है. I always try to tell her that they are very nice people. Since I'm a social person, I used to visit my neighbors and they would also come to my house. However, my wife was not friendly towards them. She would not sit or talk with them. If any of my French friends who are Christian visited our house, I would ask her to make coffee for them, but she would always refuse. However, if my Muslim friends come, she would be good to them, make coffee, sit with them, and talk with me with them. Unfortunately, our neighbors and friends eventually learned about my wife's dislike for them, so they stopped coming to our house. Now I feel embarrassed to go to their house as well.
Moreover, she does not allow her kids to play with the neighbors' kids. She always says that they integrate with them. She always says that if they integrate with them, they will become like them, drinking alcohol, wearing bikinis, and disobeying Allah. In April 2022, on the occasion of Easter, things escalated. As you know, Christian kids go to the neighbors' houses to give them gifts and Easter eggs. When the neighbors' children came to her house and knocked on the door, she opened it, refused to accept the gifts, and scolded them, telling them not to come again. And this is them उन्हीं के मुल्क जाके उनको बोल रहे हैं आना. In France, shouting at and threatening children is a crime. The children told their parents about the incident and they filed a complaint against us, resulting in a hefty fine due to my wife's ignorance. After this incident, I told her that she cannot continue living in a Western society. I decided to send her and the children back. बच्चों के साथ जुल्म है ये. Children back to Pakistan while I stay and work here. I plan to visit them during my vacation, similar to how many Pakistanis work in Gulf countries. However, I'm not happy with this decision because in France, my kids received free education, free healthcare, and a monthly allowance of 170 euros from the government. They have a safe and good life here. My wife agreed to go to Pakistan, and once I make all the arrangements for their return to Pakistan, then she told me that her mother advised her not to come to Pakistan because the situation is not good there. Mashallah, काफिरों में रहें इधर ना आए. Now I'm very depressed with my life. I cannot divorce her because of my children and she is not willing to go to Pakistan. Please suggest what I should do now. यार आपको खुद देखना चाहिए था. आप जब अगर आप ऐसे यार इसलिए कहते हैं ना भाई, पहले एक बार बात करके ज़रा जांच लो कि अगले की क्या सोच है क्या नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आपको ख़ुद ख्याल करना चाहिए था कि भाई अगर आप एक वेस्टर्न एजुकेटेड इंसान हैं तो आपकी शादी किससे हो रही है. आपने भी हाँ कर ली, रजामंदी कर दी. आई अंडरस्टैंड इन योर कल्चर इज़ नॉट अलाउड. ख़वातीन से लोग मतलब अपने पार्टनर से लोग शादी के बाद ही मुलाकात करते हैं, विच इज़ लाइक जुआ. और जुआ इस्लाम में हराम है लेकिन हमारे मुल्क में रोज़ खेला जाता है. राइट नाउ आई एम नॉट सेइंग कि आप डेट पे निकल जाओ और पार्टी शार्टी करो, बट एटलीस्ट एक डिसेंट सेटिंग में बैठ के आप एक दूसरे से बात तो कर सकते हैं, जांच तो सकते हैं कि भाई क्या है क्या नहीं है. दूसरी चीज़, आपकी वाइफ को पहले नहीं पता था कि यहूद व नसारा के मुल्क में जा रही हूँ, तो वो ना जाए, रहती इधर चार सद्दा में या बन्नू में जहाँ की भी हैं वो आराम से रहती. वाई डिड शी एग्री? ठीक है, अच्छा फिर वहाँ गई और देखिए इस तरह का जो बिहेवियर है ना, बच्चों को डराना, बच्चों को धमकाना. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे यहाँ एक तो बच्चों के ऊपर कोई सेंसिटिविटी को समझता ही नहीं है. हम जिस तरह बच्चों को ना कितना प्याला बच्चा हाथ लगा लिया, बाहर मुल्कों में पुलिस बुला ली जाती है कि इसने मेरे बच्चे को टच किया विदाउट द कंसेंट का हमारे यहाँ कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है. हाथ घुसा दो, टांग घुसा दो, पूरा बंदा ही घुस जाए. कंसेंट वनसेंट का कोई चक्कर नहीं है. बच्चे को मार लो, पीट लो, कोई सेंसिटिविटी ना. बच्चों की सेंसिटिविटी ना. दरख्तों के मामले में चलते चलते फूल तोड़ देंगे. कीड़ा आप जाएं फ्रेयर हॉल में, चलते फिरते फूल तोड़ होंगे. क्यों तोड़ा है भाई? मगर नहीं, तमीज़ ही नहीं सिखाई इस दुनिया में चलने की, रहने की. और मुझे तो हैरत होती है, इतना मजहबी मुल्क है और यही नहीं सिखा सके हम आज तक अपनी आवाम को कि सड़क पे कैसे चलना है. फूलों के क्या आदाब आदाब है. दरख्तों के भी, दरख्त भी जो हैं जानदार होते हैं, सांस देते हैं, सांस लेते हैं, मगर कोई सेंसिटिविटी नहीं सिखाई. और बच्चों का आप जो अभी हमारे यहाँ बोलते हैं जी बच्चे जो हैं दीन से दूर हैं. बच्चों को दीन से दूर करने वाले मस्जिद के खुद के लोग होते हैं. अगेन नॉट सेइंग इमाम साहब, आई एम सेइंग जो लोग मस्जिद में आते हैं, अंकल जो आते हैं, आप में से जितने बैठे हैं, अंकलों ने डांट के भेजा है जाओ पीछे सफ़ में जाओ या कोने पे सफ़ पे जाओ. क्यों? अंकल क्या लिखवा के आते हैं अल्लाह मियाँ से कि आगे वाली सफ़ में मैं खड़ा हूँगा? बच्चा क्यों नहीं खड़ा हो सकता? अजीब चीज़ है. इस तरह दीन से दूर करते हैं. मैं जाता था एक बार टी शर्ट, भाई क्रिकेट गर्मियाँ थी, क्रिकेट खेल रहा था मैं भाई टी शर्ट में और जीन्स में. अजान का वक्त हुआ, अच्छे बच्चों की तरह मैं चला गया मस्जिद में. ऐसी चूंटी काटी ना मुझे अंकल ने कि निकलो यहाँ से तुम टी शर्ट में. हालांकि उसमें ना कुछ लिखा हुआ था ना कोई तस्वीर थी. इतनी अकल तो मुझे भी थी, मगर क्यों हाथ नंगे लेके क्यों है? मैंने जाना ही छोड़ दिया एज अ प्रोटेस्ट. अगेन इसमें मज़हब का कसूर नहीं है, इस्लाम का कसूर नहीं, जो ठेकेदार है उनका मसला है. खैर बात कहाँ से कहाँ निकल गई. तो भाई सिखाई नहीं तमीज़, दुनिया में चलना कैसे है, आदाब आदाब क्या है, हुकूकुल इबाद क्या है, सारे रट्टे मार मार के ना, सर आगे पीछे कर करके जो हम स्कूलों में पढ़ते आए कि जी हुस्न इखलाक, और हम मिसालें देते हैं कि जी हुस्न इखलाक से कोई मुसलमान हो गया फलाने का ना. अपना हुस्न इखलाक कोई ₹1.5 का भी नहीं होता. खैर, और ये जो बच्चों को भगा दिया, फिर यही लोग जो हैं फिर बोलते हैं जी शरीयत चाहिए हमें. वो कहते हैं भाई जहाँ से आए हो वहाँ ले लो शरीयत. हमने मना किया कि बराबर में काबुल है, वहाँ तो शरई हुकूमत है, वहाँ चले जाए. काबुल कोई नहीं जाना चाहता, शरीयत सबको चाहिए.
अरे फ्लाइट लो चले जाओ काबुल खल्ली वल्ली, लेकिन वहां नहीं जाना। तो दूसरे के घर जाना है और फिर मुझे यहाँ आके मुझे शरीयत भी चाहिए, मुझे राइट्स भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो चाहिए। फिर अगर वो आगे से करें तो वही देखें आप तो बड़े राइट्स देते हैं, आप हमें क्यों नहीं दे रहे। अगेन खैर अब लंबी डिबेट हो जाएगी। पॉइंट बीइंग इस तरह के जो बिहेवियर होता है, फिर जब नेबर्स दूर होते हैं, व्हेन यू डोंट टॉक, व्हेन यू डोंट मिंगल, अगेन व्हेन आई से मिंगल, जरूरी नहीं कि अब उसकी शराब आप पकड़ लो। वो रॉबर्ट कौन सा बकरा काट रहा है बकरा ईद पे जो आपने उसकी शराब पीने के रिश्ते में जाके नहीं करनी। आप अपनी लिमिट में रहें, वो अपनी लिमिट में रहेंगे। एंड दे रिस्पेक्ट अ लॉट ऑफ पीपल दैट आई नो हु वर्क विद पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ इन अदर कंट्रीज। दे आर सो माइंडफुल। रमज़ान में दे आर सो माइंडफुल कि सामने खाना नहीं है, या फिर ये कि इफ्तार के बाद कॉल करनी है अगर जूम कॉल लगी हुई है। आप दिस पर्सन आई न्यू, उसका क्या था, उसकी कोई चक्कर था, उसकी यूएस से कॉल आती थी एंड देन दे फाउंड आउट कि उसकी नमाज का टाइम होता है। उन्होंने अपना टाइम पीछे कर दिया। यानी अब जो बंदा सुबह 7 बजे यूएस से कॉल मिलाता था या लाहौर में, व्हेन दे फाउंड आउट कि यहाँ फजर का टाइम होता है या मगरिब का होता है या जो भी होता है, उसने अपना टाइम पीछे कर लिया। तो भाई आपने इस्लामी रियासतें, क्या बोलूँ यार, हुस्न इखलाक देखना है तो आप गैर मुस्लिमों में मिलेगा आपको। इंसाफ हो गया और हुस्न इखलाक हो गया, बाकी जो चीज़ें उनकी पर्सनल हैं भाई, अब क्या करें। एनीवे सो इस तरह के बिहेवियर जब लोग दूर होते हैं, व्हेन दे डोंट इंटीग्रेट, व्हेन दे डोंट मिंगल, फिर वो उनको अपना दुश्मन समझते हैं। और फिर दैट गिव्स राइज टू राइट विंग आइडियोलॉजी जो पूरी दुनिया में चलती है। और फिर आप देखते हैं जिस तरह क्राइस्ट चर्च का वाक़या था, इस तरह उसने मस्जिद में जाके क्यों मारा, मॉल में जाके क्यों नहीं मारा, या किसी और जगह पे, ठीक है ही वाज टारगेटिंग मुस्लिम्स एंड मस्जिद आर द प्लेस जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ मुस्लिम्स मिल सकते हैं। कुड हैव गॉन टू अ नेबरहुड विच वाज फ्रीक्वेंटेड बाय मुस्लिम्स, या होते हैं ना कुछ इलाके जैसे इंग्लैंड वगैरह में एल्फर्ड लेन चले जाए तो सारे मुसलमान ही है ना वहाँ। इस तरह के बिहेवियर्स जो हैं डिस्टेंस क्रिएट करते हैं। ना आई एम नॉट सेइंग आपने हैलोवीन की कैंडी नहीं खानी, ना खाएं, बट आप पोलाइटली मना कर सकते हैं कि भाई मेरे रिलीजन में अलाउ नहीं है या फिर ये कि मैं इसको नहीं कर सकता। पोलाइटली डांट डपट करके बच्चा भगाया, आप देखो खुद ही फाइन भरना पड़ा। दूसरी चीज़ मेरे भाई अगेन ज़्यादा फॉल्ट पे आप ही हैं, क्योंकि आपका काम था ना देखना आपकी शादी किससे हो रही है। आप नन्हे बच्चे तो हो नहीं कि पकड़ के शादी करा दी आपकी। पहले जब आपने देखा कि आपकी वाइफ जो है उनका इस तरह का बिहेवियर है और वो रहना मुश्किल कर रही हैं और आपके ताल्लुकात भी ख़राब हो रहे हैं, आपने 2 बच्चे भी कर लिए उनके साथ, जब आप ये चीज़ें देख रहे हैं तो पहले ख्याल करें ना। अब बच्चे हो गए, अब आप अपने साथ जुल्म कर रहे हैं, अपनी बीवी के साथ जुल्म कर रहे हैं, जो भी है, और बच्चों के साथ जुल्म कर रहे हैं। ठीक है, आई एम अ फादर, आई लिव अवे फ्रॉम माई चाइल्ड एंड आई नो इट्स वेरी पेनफुल एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन टू बी रेज्ड अराउंड बोथ द पेरेंट्स। एक ने नहीं पालना होता, दोनों ने पालना होता, पूरा यूनिट होना चाहिए साथ। अब आपने सही वक्त पे सही नहीं जांचा, उनको और भी मिल सकते थे अपने टाइप के। मैं इसलिए कहता हूँ कि भाई पहले बात कर लो ताकि आपको लगे हाँ यार मेरी टाइप का मर्द है या मेरे टाइप की ही औरत है, ताकि इस तरह के मसले ना हो। अब आपकी टाइप्स भी नहीं मिलती, आप वेस्टर्न एजुकेटेड हैं, वो मदरसे की एजुकेटेड है, पोल्स अपार्ट। ना आई एम नॉट सेइंग कि इस तरह के कपल्स नहीं एग्जिस्ट करते या को एग्जिस्ट करके प्यार से नहीं रह रहे, बहुत सारी मिसालें हैं, हज़ारों मिसालें, मगर उसके चांसेस बड़े कम होते हैं, राइट। तो वो भी हो गया, बच्चे भी हो गए। अब आपको समझ नहीं आ रहा, या तो फिर आप भी छोड़ के इधर आ जाएं। आपकी सास तो बोल दीजिए पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं, वहीं रहो, काफिरों में रहें आप। पहले इंडोक्ट्रिनेट करके ये बनाया काफिर बुरे हैं, अब कह रहे भाई काफिरों में ही रहो। वो भी कंफ्यूज, सारे ही कंफ्यूज हैं। भाई को एग्जिस्ट करना सीखें। अब देखें ना यार, अब मैं उनकी री एजुकेशन की बात करूँगा तो फिर लोग नाराज़ होंगे। तो बेहतर है वो, अगर उनको लगता है कि दुश्मन है तो फिर ना रहें दुश्मनों में, क्यों रहती हैं काफिरों में। और क्यों काफिर का 170 यूरो एक्सेप्ट करती रही हैं अभी तक वो, ये भी तो सवाल करें उनसे कि आपके बच्चों का जो 170 यूरो जो एक काफिर हुकूमत यहूदो नसारा आपके अकाउंट में हर हफ्ते डाल रही थी, हर महीने 170 यूरो, तो वो क्यों एक्सेप्ट कर रही थी? वो नहीं करती एक्सेप्ट। लेने भी पूरे फंड्स हैं, धड़ाधड़ बच्चे भी लोग करते हैं, आपकी बात ही कर रहा, जनरली 6-6 बच्चे करते हैं लोग, फिर डिवोर्स कर देते हैं ऑन पेपर, वैसे नहीं करते, तलाक बोलते नहीं है, ऑन पेपर गवर्नमेंट को दिखाने के लिए, और एक ही घर में रहते हैं, ऊपर शोर भी कि जी बच्चे साथ पाल रहे हैं, बच्चे अलग नहीं कर सकते। बीवी दिखाते जी बीवी नीचे रहती है, मेरा बेडरूम ऊपर है, वो तो मियाँ बीवी हैं, क्योंकि सिंगल पेरेंट को ज़्यादा अलाउंस मिलता है। ये सारी चीटिंग जो है ना आपके साउथ एशियन आपको करते हुए दिखेंगे, इंग्लैंड में इधर उधर जो लोग रहते हैं, लिखे कमेंट में बताएं आप, बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। तो काफिर का फंड खाना है, बट काफिर की टॉफ़ी नहीं खानी। 170 यूरो खा लेना है, बच्चा टॉफ़ी लाएगा, टॉफ़ी नहीं खानी मैंने।
हाँ ठीक है, वाइन वाली है वो नहीं खानी है आपने, वो नहीं अलाउ है, लेकिन अगर वो लिंड विंड ला रहा है या कोई फेरेरो रोशर ला रहा है, प्यार से ही ला रहा है, एक्सेप्ट कर लो यार, बच्चे का दिल रख लो, मगर हमें सिखाए नहीं ना किसी का दिल क्या रखना है क्या रखना है। लाए अब बनाए फतवे वाली वीडियो। अभी अब तो एक तो भाई हर बंदे ने माइक और मग्गा रख के शुरू हो गया है और कोई कंटेंट तो है नहीं, तो फिर मेरी इस तरह की वीडियोस उठाते हैं, फिर कोई वीडियो बना लेगा। आज भी किसी ने बनाई हुई थी, आज भी एक बनी हुई थी, कल भी बनी हुई थी, कभी कोई आंटी लगी हुई है, कोई अंकल लगे हुए हैं। अच्छा यार, अल्लाह ने ज़रिया बनाया है, लोगों का कारोबार चल रहा है मेरी शक्ल पे, तो बनाए भाई मेरे पे वीडियोस, ये मेरी थॉट्स हैं एंड आई एम एंटाइटल्ड टू हैव माई थॉट्स। खल्ली वल्ली आपकी जो है वो रखें, मगर भाई यहाँ पे सरासर गलती भैया आपकी है। मैं कोई शुगर कोटिंग नहीं करूँगा। पहले आपको जानना चाहिए ना, आप अगर वो स्कूल की भी नहीं पढ़ी हुई हैं और आप क्या हैं, आपने एक्सेप्ट कर ली, फिर बच्चे भी कर लिए, फिर आप अगेन, इसका सोल्यूशन मेरे पास नहीं है। सोल्यूशन इसके भाई यही है, या तो उनको री एजुकेट कराएं, उनको बिठाएं, समझाएं, नहीं समझती फैमिली इन्वॉल्व करें, या फिर ये कि आप सारे उठ के आ जाएं दोबारा इधर, चार सद्दा बन्नू, कहीं से भी आपका ताल्लुक है, पेशावर से है, कहीं से भी है, आप यहाँ के रह लें। इस्लामी माशरा, इस्लामी नहीं सॉरी मजहबी माशरा, इस्लामी माशरा तो बिल्कुल नहीं है ये। सफाई निस्फ ईमान है, आधा ईमान तो हमारा यही नहीं हो रहा। जाके कचरा देखें आप बाहर। बाकी दूसरे मामला आपके सामने। फ्रांस के पढ़े हुए अच्छी नौकरी मिल जाएगी, लाख सवा लाख वाली हो जाएगा। केपीके में कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी ज़्यादा नहीं है, तो रहें, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारें इस्लामी मुल्क में। आपकी बेगम भी खुश होंगी, आपके बच्चे भी नानी के पास रहेंगे। अब नानी कह रही है यहाँ नहीं हो वहीं रहो, नानी खुद आने के चक्कर में होंगी, बेटी को क्या इंडोक्ट्रिनेट किया, खुद कह रही है वहीं रहो। अजीब है भाई, हमें पता ही नहीं है। बचपन में हमारी लाइन और लेंथ कुछ और होती है, जवानी में कुछ और, बुढ़ापे में कुछ और, एक लाइन पे चलते ही नहीं है हम लोग। आप अपने अब्बू की पार्टियां चेक कर लें, पार्टियों से हमारा पॉलिटिकल पार्टी, वो 80s में कहीं और होंगे, 90s में कहीं और होंगे, फिर अभी खान साहब वाले पार्टी होंगे, अब कुछ और हो जाएंगे। एक लाइन ही नहीं होती भाई। ठीक है, इंसान इवॉल्व करता है, मगर ये इसका भाई यही सोल्यूशन है, फिर आप सारे पाकिस्तान आ जाएं। और इस तरह के जितने लोग हैं जो समझते हैं, मैं एक साहब से मिला था, मुल्क का नाम नहीं लूँगा, 17 साल से वहाँ रह रहे हैं, गालियाँ दे रहे थे इसी तरह की कि ये है और वो है और वो है वो है। तो मैंने बोला मियाँ अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की डिग्री लेके माशाल्लाह सऊदी चले जाएं, अफ़गानिस्तान चले जाएं, नहीं रहना भी उधर ही है, लेकिन गाली भी उसको देनी है। उस मुल्क को जिसने आपको शेल्टर दिया, जिसने आपको तालीम दी, आपको हेल्थ केयर दिया, जो वो चीज़ें जो आपके मुल्क में आपको कभी भी नहीं देगा। फ्री हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन तो फ्री मिल जाती है गवर्नमेंट अलाना स्कूल में, मगर क्या बच्चा निकलता है वहाँ से आपके सामने। ठीक है, और अगर सेफ्टी नहीं है तो आपको फिर सेफ्टी, रेफ्यूजी कितने हमारे बन के जाते हैं ना दूसरे मुल्कों में। तो जिस मुल्क में आप सेफ्टी के लिए जाते हो, हेल्थ केयर, एजुकेशन, जो फिर आपको नौकरी भी देता है, आपको पालता भी है, नौकरी नहीं है तो फिर भी अकाउंट में पैसे देता है, चल भाई तेरा गुजारा हो, तेरे बच्चे जिंदा रहें, उसी को लोग गालियां देते हैं। नमक और जो है मतलब मैं कितना सख्त से सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, जिस प्लेट में खाते हैं उसी में मूतने वाली बात है ये। जो आप खाते हैं वहीं मूतते हैं। मतलब बेगैरती की इससे ज़्यादा इंतहा कोई नहीं हो सकती कि जो आपको खिला रहा है, अब वो लगे जी हमारे टैक्स का पैसा है वापस हो रहा है, तो भाई नहीं दो ना उनको पैसा। क्यों काफिरों को कमा के दे रहे हो? वापस आओ, मियाँ साहब को कमा के दो। क्यों काफिरों को कमा के दे रहे हो? भाई हिपोक्रेसी हम में हो ना हो, और हम चलते फिरते और हम में हिपोक्रेसी ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मुझे ये बहुत मेरी चिढ़ इन चीज़ों से। यार आपको अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा मुल्क है हमारा, 5 सूबे हैं उसके, इतना रकबे ही रकबे हैं, गाड़ी लेके निकलो ख़त्म ही नहीं होता, आके रहो इधर। खल्ली वल्ली किसने बोला है आपको? नहीं रहना भी नहीं है यहाँ, मगर इसी को याद करना है, और जहाँ जिसने शेल्टर दिया उसको गाली भी देनी है। भाई वही वाली बात है, आपके घर कोई रहने और आप ही को कोस रहा है, लानत आपको आते जाते लानत देता रहे। मतलब आप दरवाजे पे, आप नीचे पोर्शन पे रहते हो, ऊपर आपने किसी को रेफ्यूज किया कि भाई तू आ, ये ले खाना, ये तेरे बच्चों का खाना, ये ले तालीम, ये ले हेल्थ केयर, और आप आते आते उसी को लानत दे रहे हो। क्या बेगैरती की बात नहीं है? तो बेगैरत होते हैं ऐसे लोग जो कि जहाँ का खाते हैं उसको इस तरह करते हैं। कहीं पे भी, चाहे वो पाकिस्तान में हो, बहुत से लोग यहाँ पे रह के जो है फॉर एग्जांपल दूसरे मुल्कों से जो यहाँ आए हैं, इस मुल्क को मानते नहीं है, यहाँ का पासपोर्ट लेके घूम रहे हैं पूरी दुनिया में, राइट? वो भी गलत है। तो जिस तरह उनको हम लोग कुछ लोग नमक कहते हैं, तो भाई ये भी नमक हुई ना। तो समझ नहीं आती मुझे लोगों की मंतक। और रही बात, अब यार मैं फिर आयतों में मैं नहीं जाऊँगा, फिर वो लोग जो है ना कुरेद के फिर कहीं ना कहीं बात कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। ये जो बात है, यहूद और नसारा आपके दोस्त नहीं हो सकते,
करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये एक किसी मुआहदे को तोड़ा गया था तो उसके ऊपर ये आई थी, ये वाकयातन थी, ये पूरी ज़िंदगी के लिए नहीं थी, या थी, आई डोंट नो, मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ तो मैं इस पर ज़्यादा जाऊँगा नहीं, जो लोग इसमें समझ बूझ रखते हैं वो बेहतर इसको समझा पाएंगे। तो भाई इसमें सोल्यूशन यही है कि आप सारे वापस पाकिस्तान आ जाएं और मजहबी माहौल में बेहतरीन ज़िंदगी गुजारें। शुक्रिया। खैर भाई, ये थी आज की एपिसोड। बोलने को तो बहुत कुछ था, लेकिन क्रिकेट की ट्रांसमिशन करनी है, हमारे गेस्ट भी आ गए हैं, मैच को ख़त्म हुए 1 घंटा हो गया है, एंड वी कैन नॉट डिले दैट, सो अनफॉर्चुनेटली वी हैव टू रैप इट हियर। ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, एंड यू कैन सपोर्ट दिस चैनल ऑन patreon.com/ganjiswag। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। खुदा हाफिज़।